Hello students, this is your history chapter 1, the French Revolution. French Revolution, this is the first most important revolution throughout the world. This was the revolution only which happened for the first time in the world that changed the world from monarchy to monarchy or dictatorship also to democracy. Now, see the first heading, French Revolution during the 18th century. 18वीं सदी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हिंदी में हम इसको बोलते हैं. So first of all, they have tried to explain about the French society only, that the society was part of feudal system. Feudal system, they have termed it as the bonded laborers. Bonded labor जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बंधुआ मजदूर. Now who were these bonded laborers? So before starting this, I would like to explain you like the French society was divided into three states. Estate, E-S-T-A-T-E, not the state, estate. Three parts में जो society थी that was divided. It was first estate, second estate and the third estate. Now who were the people included in the first estate? They were the clergy people. Clergy means people related to the church. Okay. And then the second estate was there. So this second estate was the nobility. Nobility means the king and its family and his family members. Now both these first and the second estates, they enjoyed all the privileges by birth. जितनी भी सहूलियत है, because they have took birth in first and second estate, so they have the right to enjoy each and every privilege, सहूलियत, importance, rights है उनका हर एक चीज़ के ऊपर, on all the resources of the country also. And both these estates were exempted from paying tax also. So कोई भी इनको टैक्स भी नहीं देना है. Now who were the people, those who were included in the third estate? So they were the big businessmen, merchants, lawyers. Second category, see in third estate, three different categories are there. Second category is peasants and artisans, गांव वाले और जो कारीगर थे, artisans मतलब कारीगर. Then the next one was there, third category was the small peasants, landless laborers and servants, नौकर, मजदूर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, एंड स्मॉल पेजेंट्स जो गांव वाले छोटे पैमाने पर थे. नाउ दीज पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स एंड स्मॉल लैंडलेस लेबर्स एंड servants, they used to provide services to the lords. To the lords means to the first and second estate people. So church imposed taxes. Church people means the first estate. The first estate people, the clergy people, they imposed taxes which was known as tithes. So one mark question is also there, like what do you mean by tithe? So tithe was a tax imposed by church. And one more tax was there, indirect tax, tele. So indirect tax which was taken by the state or the government, or you can say the king was taking this tax, that was known as tele. So tithe and tele, two different categories was there of taxes, but these taxes were supposed to pay by the third estate people only and not by the first and second estate. पहली और जो सेकेंड स्टेट थी उसको तो कोई भी टैक्स नहीं देना, सबके सब सारे जो टैक्सेस हैं वो थर्ड स्टेट को ही देने थे. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वाई दिस रिवॉल्यूशन, क्रांति हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, ये क्रांति, ये बदलाव फ्रांस में क्यों आया जो कि फिर पूरे वर्ल्ड में फैला. अब आपको इसमें सबसे बड़ा मेन कारण तो यही समझ आ जाता है कि जो थर्ड स्टेट पीपल थे, दे वर नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ. वो खुशी वाली लाइफ नहीं जी रहे थे, बिकॉज दे वर सपोज टू पे ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस. दे वर supposed to do all kind of bonded labors work, and
वर गिवन वेरी लो वेजेस, बहुत कम वेजेस भी उनको मिलती थी. So how come? Who were the people? Those who started taking revolt. इनके विद्रोह जो थे, विरोध करना इनका शुरू किसने किया? अभी विरोध करेगा कौन? थर्ड स्टेट के पीपल ही, क्योंकि प्रॉब्लम्स उनको हैं. तो थर्ड स्टेट में से भी जो पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स हैं, ये जो स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स हैं, दे कैन नॉट डू दिस वर्क बिकॉज दे वर इलिटरेट, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उन्हें नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है. But the third category, the very first category which I have explained you, that those were the big businessmen, merchants, lawyers, etc. Because they were the people who were educated, who were aware of the rights also. So these people started making a new class in between this third state. ये third state में से भी कुछ लोगों ने एक नई class बनाई, and that was termed as middle class. So middle class was a social group itself from the third state people. It includes the people, professionals like lawyers, administrative officials. They believed in the idea. What was the main idea of these people? They believed in the idea of privileges on merit, not birth. उनके accordingly कि जो भी privileges मिल रही हैं, जो भी importance मिल रही है इन लोगों को, वो merit base पर होनी चाहिए, यानी काम के बेस पर होनी चाहिए, नॉट ऑन बर्थ, जन्म से नहीं. क्योंकि आप एक चर्च फैमिली में बिलोंग कर रहे हो, चर्च के लोगों के अंदर आ रहे हो, या राजा की फैमिली को बिलोंग कर रहे हो, तो आपको वो प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए. नहीं, उन्होंने बोला अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, सो दैट शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन. सो आइडियाज़ वर टेकन. अब मिडिल क्लास के लोगों को भी ये चीज़ें कहाँ से समझ आएँ कि हम अपने लिए आवाज़ उठाएं और दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर. वो सब आइडियाज़ उनको मिले जो मेन हमारे फिलोसफर्स थे, जो लिखने वाले हमारे फिलोसफर्स थे. सो थ्री मेन इंपॉर्टेंट नेम्स आर देयर about the three philosophers. They were John Locke. His book name is The Two Treatises of Government. So he wrote a book named as Two Treatises of Government. The another philosopher or the writer was Jean Rousseau. So he was a social contractor also. Then is your Montesquieu. He wrote the book The Spirit of Laws. So three main writers or philosophers were there who just make the mind of the middle class people, those who were educated, to turn revolt, to make a revolt against the first and second states. ठीक है. Now the important things, again I want to tell you people like about the first and second state only. First I explained you that they were exempted from paying taxes. They were not supposed to pay any of the tax. Peasants from 90% of the population. So who were supposed to pay the taxes? Peasants, जिनकी population 90% थी. अब आप ध्यान से समझो, जो फ्रांस की पूरी पॉपुलेशन है उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, दे आर हार्डली द 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10% है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट वाली है. एंड दे वर ओनली सपोज टू पे द टैक्सेस, बट दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वो गरीब थे. चाहे 90% पॉपुलेशन है, लेकिन जब उनकी कमाई उतनी नहीं है और उनको टाइम टू टाइम उनको और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, तो फिर वो कैसे टैक्सेस देते. एंड टू add this one more problem to this only, 60% of land owned by nobles church. जो फ्रांस की जितनी ज़्यादा जो लैंड थी उसमें 60% कंट्रोल था फर्स्ट और सेकंड स्टेट का, नोबल्स और चर्च के लोगों का. अब आप देखिए 90% पॉपुलेशन जो कि थर्ड स्टेट को बिलोंग कर रही है, वो पॉपुलेशन फ्रांस की जो बच गई थोड़ी सी ज़मीन, 40% जो लैंड है उसके ऊपर रह रही है, उस पर डिपेंडेंट है. देन हाउ दे वर एबल टू पे द टैक्सेस? It was quite impossible for them. Then the members of the first two states, clergy, nobility, enjoyed privileges. Again the same thing, first two states जो थी वही enjoy कर रही थी. सारा का सारा जो taxes का burden था, that was to be paid by the third state only.
Now the next one is the outbreak of the revolution. This is your next category. नेक्स्ट टॉपिक. अब क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थर्ड स्टेट वाले दुखी हो गए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट से, सो दे स्टार्टेड एक रिवॉल्यूशन, especially the middle class people, because they were only guiding these peasants and landless laborers who were uneducated also. जिन जो पढ़े लिखे ही नहीं थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, बट जो पढ़े लिखे थे, जो जॉब कर रहे थे, those who were rich also, those who were supposed to pay the taxes, उन सब ने when they read about the great philosophers like Rousseau, Montesquieu and John Locke, उन्होंने they started revolting, उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया. अभी रिवॉल्ट कैसे हुआ शुरू देखिए. मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल. स्टेट जर्नल. Now what was the state journal? Was a political body to which states sent their representative. एक स्टेट जर्नल बनाई गई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेट से. स्टेट जर्नल बनी जो एक्चुअल में उन्होंने पॉलिटिकल लेवल की एक बॉडी बनाई, यानी कि आप कह सकते हो इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इटसेल्फ. तो वो एक पॉलिटिकल लेवल पर उन्होंने एक बॉडी बनाई है, पॉलिटिकल बॉडी बनाई. सो लुइस 16 कॉल्ड मीटिंग. Louis XVI, who was the ruler of France during that time when the French Revolution took place. So Louis XVI called meeting to increase taxes and pass proposal. Actually में इस मीटिंग में लुइस 16 जो रूलर था उसने मीटिंग तो इसलिए बुलवाई कि हम इनके ऊपर टैक्सेस को थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्योंकि उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज देयर और खूब सारे लड़ाई में पैसा वैसा लग चुका था. तो उनको उसको लगा, सॉरी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है, ये उससे पहले की है, कि वो एक्सपैंड करना चाह रहे थे, उसकी वजह से खूब सारे वॉर्स हो रखे थे. और वो अपने यहाँ का जो लुइस 16 ने देखा कि उसका सारा जो खजाना है, ट्रेजर जो है, इट वाज एम्प्टी. सो टू इंक्रीज दैट, टू इम्प्रूव द quality of the treasure, he wanted to increase the taxes and pass proposal. So representation of National Assembly, that was your second heading. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट. अब रिप्रेजेंटेशन जो थे इस नेशनल असेंबली के, कौन सी नेशनल असेंबली, ये जो जर्नल स्टेट है आपकी, इसके जो अब उन्होंने अपने अपने क्या, सारे जो लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना शुरू किया. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स में से दोनों ने मिलाकर, दोनों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 फर्स्ट स्टेट ने, 300 सेकेंड स्टेट ने अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया. थर्ड स्टेट सेंट 600 मेंबर्स. थर्ड स्टेट अलोन सेंट इट्स 600 मेंबर्स, क्योंकि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन की, 90% पॉपुलेशन जो फ्रांस की है, दैट वाज फ्रॉम द थर्ड स्टेट ओनली. तो उनके मेंबर्स भी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होने थे वो भी ज़्यादा होने थे. सो पेजेंट्स, आर्टिजन्स ऑफ विमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. लेकिन इसमें भी क्या उन्होंने रख दिया है क्राइटेरिया कि सारी पॉपुलेशन तो पहले तो आ नहीं सकती, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें. और उन रिप्रेजेंटेटिव्स में भी ना तो विमेन आएंगे, ना आर्टिजन्स आएंगे, ना ही पेजेंट्स आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो टैक्सेस लगाना है. दे कैन अपोज इन दैट. और कोई वो उनमें से कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उन्होंने सबसे बेस्ट किया कि भाई 600 जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, दे शुड बी लिटिल बिट एजुकेटेड. तो उसमें हमारे कौन से लोग गए, फिर आपको क्लियर हो जाना चाहिए. दे वर द पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास ओनली. मिडिल क्लास, दोज हु वर एजुकेटेड, लाइक दे वर डूइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स थे, मर्चेंट्स थे, तो वो वहाँ पर पहुँचे. नो डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब उन्होंने वहाँ पर जाके क्या रखा कि हमें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक को वोट देने का अधिकार हो. ईच स्टेट हैड वन वोट. उसमें भी क्या था कि 3 स्टेट हैं, तीनों स्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार है. लेकिन थर्ड स्टेट डिमांडेड वोट ऑफ ईच इंडिविजुअल. थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, हम सभी को वोट देना है. एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट स्टेट का एक वोट है, सेकंड स्टेट का एक वोट है, थर्ड स्टेट का थर्ड एक वोट है, तीनों मिला के 3 वोट्स हो गए कि सिर्फ 3 वोट्स के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा. अब उनको पता है, अगर हम मेजॉरिटी में भी देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो पहले से ही एक साइड में है, तो जो भी वो प्रपोजल लुइस 16 लेके आएगा एज अ किंग, दैट विल बी अप्रूव्ड, वो तो पास हो ही जाएगा. लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या बोला कि हम एक एक इंडिविजुअल से,
एक एक इंडिविजुअल का चाहते हैं कि वो उसको वोट देने का अधिकार हो. सो किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल. लेकिन किंग को कैसे एक्सेप्ट हो सकता था, क्योंकि उसको पता था फिर तो अगर फर्स्ट सेकंड स्टेट के भी मेंबर्स को अगर हम मिला लें तो वो 300 वो हैं, 300 वो हैं, वो तो 600 टोटल दोनों के हुए, और थर्ड स्टेट के तो अकेली के 600 है. तो इतने मेंबर्स जब वोट करेंगे तब तो उनके खिलाफ ही बात जाएगी. सो द मीट ऑफ नेशनल असेंबली, फिर हुई उनकी मीटिंग नेशनल असेंबली की. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन इंडोर टेनिस कोर्ट. ये जो मीटिंग होनी थी उनकी वो टेनिस कोर्ट में हुई. उसमें अब क्या किया, सारे मेंबर्स तो आ नहीं सकते, तो रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के वो वहाँ पहुँचे. डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स नेशनल असेंबली. अब क्योंकि उनकी बात तो कोई मान नहीं रहा है, और ऐसा भी आपके चैप्टर में यू विल रीड ऑल्सो that in the tennis court the some of the sitting arrangement was also there, but the people of first and second states were only sitting on the chairs. वो जो उनको सीट्स लगी हुई थी उन सीट्स के ऊपर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स बैठे हुए थे. एंड द थर्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और द मिडिल क्लास पीपल, दोज हु वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड क्लास थर्ड स्टेट, दे ऑल वर स्टैंडिंग. तो दे फेल्ट वेरी बैड, उनको बहुत बुरा लगा. तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया दैट नाउ वी आर गोइंग टू मेक आवर ओन नेशनल असेंबली. हमारी अपनी नेशनल असेंबली होगी. ये नेशनल असेंबली में तो कौन है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं. अब उन्होंने बोला थर्ड स्टेट की अपनी एक नेशनल असेंबली होगी. नो रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल असेंबली. अब उन्होंने एक दिन फिक्स कर लिया कि ये नेशनल असेंबली का दिन है. सो लुई 16 गेव रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली. अब उसको पता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं उसके अगेंस्ट हो रखी हैं, तो लुई 16 ने भी इस बात को मान लिया. सो फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड. फ्यूडल सिस्टम वाज द सेम सिस्टम विच was based on the privileges जो by birth which they were enjoying on the basis of birth, कि birth हमारा इस फैमिली में हो रखा है, so that's why we can enjoy this power or these kind of all the things. Now the next topic is your France becomes a constitutional monarchy. फ्रांस जो कंट्री था अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में हर एक चीज़ रूल उसके लिखे गए. मोनार्की मतलब राजा का ही सिस्टम है. लुई 16 ही अभी रूल कर रहा है, लेकिन हर कोई जो रूल है दैट वाज स्टार्टेड बीइंग मेड इन द नेशनल असेंबली में वो रूल्स बनने शुरू हो गए. सो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड इन 1791 में जो ड्राफ्ट था, जो लिखा जाना था, वो चीज़ें कंप्लीट हुई. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, कि जो राजा को जो मोनार्की सिस्टम को जो पावर मिली हुई है उसको लिमिट किया जाए, कम किया जाए. पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. पावर जो थी वो अब डिस्ट्रीब्यूटेड होगी अमंग द थ्री डिफरेंट ऑर्गेन्स. दे वर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. बट उसमें भी उन्होंने क्या रखा था कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला नहीं मिला था. दैट मीन्स ऑल द पीपल हु वर above the age of 25, there they have fixed the year of 25 years age. तो 25 ईयर एज वाले सारे लोगों को उन्होंने बोला नहीं कि आप लोग वोट दे सकते हो. ये एक्चुअली थर्ड स्टेट की डिमांड थी दैट वी ऑल शुड हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट इट वॉज रिजेक्टेड. बट उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, वी विल कंसिडर ऑल द मेन, ओनली द मेन, नॉट ऑल द पीपल, बट ओनली मेन above 25 years and those who were paying taxes, जो कि टैक्स भी दे रहे हैं. और ऐसा इसमें बोला गया हुआ है, यू विल रीड इन द चैप्टर ऑल्सो, कि टैक्स जो देना है वो एक सिंगल पर्सन नहीं, जो पर्सन को टैक्स दे रहा है, जो दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग सिस्टम, वो टैक्स देगा. और वो टैक्स होगा कि अगर एक कोई मज़दूर काम कर रहा है और उसके 3 दिन की जो कमाई है, 3 दिन की वेजेस जो है उसके अकॉर्डिंगली, लाइक इफ अगर हम उस समय की बात करें, इफ़ अ लेबर इज़ अर्निंग ₹15 पर डे, तो 3 दिन की वेज जो है उसकी 45, यानी कि अगर कोई पर्सन 45 एज टैक्स देता है, देन एंड ही इज़ अ मेल मेंबर, मेन है वो, and above 25 years, then he is eligible to vote. वो वोट देने का अधिकार रखता है. Now the next topics will be explained in my next video.